अंदर की नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दी आईएएस हब। हर साल लाखों बच्चा यूपीएससी एग्जामिनेशन लिखता है, बट लेकिन उनमें से ओनली फ्यू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। एंड यू माइट हैव हर्ड दैट उनमें से कुछ ऐसा बच्चा भी होगा जो हर साल प्रीलिम्स क्लियर करता है। अरे यार, ये तो तीसरी बार लिख रहा है प्रीलिम्स, एंड दैट टू ही क्लियर प्रीलिम्स इन एवरी ईयर। और another person might have done least efforts and then they clear the preliminary examination. See, what exactly these kind of students do जो हर साल प्रीलिम्स क्लियर करता है? इट इज नॉट दैट ये लोग काफी ज्यादा मेहनत करता है, ऐसे नहीं है। जो फेल हो रहा है वो कम मेहनत करता है। कभी कभार ये भी हो सकता है द स्टूडेंट हु इज फेलिंग हु पुट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे डू नॉट क्लियर प्रीलिम्स। Now, what is the fundamental difference between someone who clears the prelims every year and someone, in spite of putting lot of efforts, do not clear this prelims? It is the way of approaching the preliminary examination. If you look into जो भी क्लियर कर रहा है ना, ये लोग क्या करते हैं? दे अप्रोच द एग्जामिनेशन इन अ डिफरेंट वे। दे अप्रोच इन अ थीम वाइज बेसिस। दे लुक इनटू द प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ते हैं लोग। पढ़ने के बाद they pick up few themes and they study those themes. Knowingly or unknowingly, they'll be following the same process. आज मैं आपके लिए ये जो प्रोसेस है सिंप्लीफाई करने का तरीका सिखाने वाले हूं। एंड आई हैव टू डॉक्यूमेंट्स विथ मी which are very helpful for you to understand how you can approach the preliminary examination of 2024. So this is a document which will tell you what are the themes or what are the topics that have been asked in the previous 10 years, and this document which will tell you what are the questions or the areas that you can expect for the further upcoming preliminary area. देखिए, this document has been made after analyzing the previous 10 years topics, and the faculty has spent hours together, days together, understanding the patterns and bringing out this content for you. Now, see here. Okay, before I go any further, let me tell you that ये जो PDFs है, इनको डाउनलोड करने के लिए what you can do is first you can go to the IAS Hub website, or else you can go to the Google, और Google में जाके हाई आउटपुट themes for prelims करके आप टाइप कर सकते हो। और then when you open that page, यहां पर as soon as you open from here, it will be directed to this page, जहां पे हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का आपका अपना हाई आउटपुट टीम्स जो प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा गया, as well as those areas where the highest potential is there to be asked, that particular PDF can be downloaded from here. Now you can keep this PDF handy, and you can also watch this particular lecture by keeping that PDF open. Now come back. See here, I told you UPSC will be asking questions mostly from 30% of the syllabus, जिनमें से 70 to 80% of the questions will come from. Yes, you heard it right. 20 to 30% of the syllabus से 70 to 80% of the questions are being asked. Now, examination clear करने के लिए कितना टाइम, कितना परसेंटेज चाहिए आपको? Hardly you require near about 50 to 55% is the cut off mark. 200 मार्क के लिए 100 मार्क्स भी नहीं है कट ऑफ ओपन कैटेगरी में, अगर देखा जाए तो। बट what is that a few students are able to make it every year and few students are not able to make it? It is because approach, वो जो अप्रोच है हम डिस्कस करेंगे। देखो यार, आई एम गोइंग टू डिस्कस द एंटायर थीम्स फॉर ज्योग्राफी, और पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर्स को हमने एनालाइज किया। उसके बाद इफ यू लुक इनटू, देयर आर फ्यू थीम्स द यूपीएससी हैज आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द थीम ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अगर देखा जाए, यू हैव ए थीम कॉल्ड सोलर सिस्टम। नाउ इस सोलर सिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे एंड अराउंड द अर्थ देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। इफ यू सी, एस्ट्रॉइड्स के बारे में पूछा गया, कॉमेट्स के बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन, इक्विनॉक्स, सोल्स्टिस, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, कॉमेट्स, एज वेल एज डे एंड नाइट वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा गया था। एंड दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस हर साल कहीं ना कहीं इन वन और द अदर फॉर्म। Either you will see them in the options or you will see them in the directly form of the question. Likewise, these are the areas that UPS has already asked. Now the potential areas where the questions can be asked is करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो इस साल सोलर सिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन टॉपिक्स के अंदर आपको ग्रीन कॉमेट एक ऐसा एरिया जो हाईएस्ट पोटेंशियल होता है, ये जो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछने का। लाइकवाइज देयर आर क्वेश्चंस ऑन बिग बैंग थियरी, बट द एविडेंसेस ऑफ द बिग बैंग थियरी सच एज रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट,
दिस इज द एरिया वेर यू कैन वर्क अपॉन, मतलब चांसेस हाई है यहां पे क्वेश्चन पूछने का। वैसे ही सोलार फ्लेयर्स के बारे में पूछ सकता है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के बारे में पूछ सकता है। नाउ आइसलैंड्स अर्थक्वेक, दिस ईयर यू हैड एन अर्थक्वेक इन आइसलैंड। Within 24 hours, there were near about 2000 plus earthquakes. Now, don't you think that this topic is important? So, one or the other way, you will get to understand that जो यूपीएससी है, ये जो एरियाज है ना, इस एरियाज के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। Now, what you have to do, you have to get the conceptual clarity on this, and you need to approach theme wise. Likewise, we have classified the entire 10-year question paper into theme based. For example, let's see a topic called rivers, origin and tributaries. This is the area where every year UPSC will ask question. Now I'll show you what are the questions that have been asked and what are the areas which you can expect in the further upcoming time period जो questions पूछा जा सकता है. See, in this particular area, the questions that are asked are, I'll show you first the questions here. Now this is the high output themes of geography. Or this is a question that has been asked in 2023. 2023 में the question that is asked is Jhelum River. मतलब you need to know about the Jhelum River passes through Ullar Lake. Krishna River directly feeds Kolleru Lake. Meandering of the Gandak River formed Kanwar Lake. देखो एक river और lake को link कर रहा है ये. This is in 2023. But if you observe the pattern, go and see. These rivers have been asked in one or the other way. पहले क्या पूछा था 2023 में, they asked about rivers and lakes, and you look into 2022 rivers as well as physiography. मतलब कौन सा ऐसा नदी is creating what kind of physiography. Now Gandikota, it is on which river? Gandikota is a physiography. Now this is a question which is asked on river and physiography. This is river and lake. Likewise, if you see, consider the following rivers. This question is asked in 2021, or ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा, वंशाधारा. Now, ये सारे they rise above from the eastern Ghats. Now, which of the rivers rise in the eastern Ghats? Now, questions are more or less around these rivers and lakes. Now, 2021 में भी question है, 2016 में भी, again 2022, 21. So, you look into, since 2015 there are series of questions. So that's why this topic becomes very very important. Now you might ask, सर इस साल के लिए कौन सा ऐसा रिवर्स है जो इंपॉर्टेंट माना जाता है? देखिए, अगर एनालिसिस करो आपको ये पता चल जाता है that for this year the same topic you pick up from this document. Now I would like to say that Krishna river इस बार न्यूज में है, Ganga river is in news, Kaveri river is in news, likewise Mahanadi and major national parks on these rivers, it was in news for many reasons. इस पर्टिकुलर रिवर्स के ऊपर काफी टाइम से क्वेश्चंस नहीं आया था. अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन में इफ यू लुक, दीज आर द रिवर्स दैट हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चंस, राइट? गोदावरी ब्रह्मपुत्र के ऊपर हर साल होता है. नाउ दीज आर द एरियाज वेयर यू हैव टू वर्क अपॉन. लाइकवाइज यू गो एंड लुक इनटू एनी टॉपिक. यहां देखो, एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, हियर the same topic in the file of the most repeated themes. इसमें the most repeated themes that have been asked are atmosphere में composition क्या है ये पूछ लिया, westerlies, easterlies, Coriolis force के ऊपर questions था, ITCZ, there are questions on that. But this year again when you look into, जो questions that can be asked are, one, water vapor. Now, huge amount of water vapor was sent into the stratosphere when there was a volcanic eruption in Tongo and other volcanic activities. Question stratosphere और ओजोन के बारे में पूछा जा सकता है, वॉल्केनो और स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पूछा जा सकता है. Likewise, if you see, we have divided this entire paper into multiple themes. आपको क्या करना चाहिए? इस थीम के ऊपर पहले काम करना चाहिए. देखो, पढ़ाई तो हर कोई करता है. Someone who do not clear the prelims, I feel that they are the one who are studying more as compared to the one who are clearing the prelims with ease. It is because उन्हें नहीं पता है कहां पे फोकस करना है, इसीलिए हर चीज जो चीज उनके सामने आता है, they take it, they feed the content, anything that comes in, they eat it in simple terms, right? But you should not be doing that. Rather, आप पहला प्रायोरिटी जो है ना,
पहला प्रायोरिटी ये हाई आउटपुट टीम्स को दो और पहले ये कंप्लीट करो। इस कंप्लीशन के बाद जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया पहले ये कंप्लीट करो, उसके बाद दोस थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड देन गो एंड रीड देम। नो लाइकवाइज आई विल शो यू ए स्मार्ट तरीका जहां पर आपको एक टॉपिक को कंप्लीट करने का। नो दैट यू कैन डू इट थ्रू योर रिविजन कार्ड्स। ये रिविजन कार्ड्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, there is a question that can be asked on the topic of plate tectonics. Prelims में पूछा जा सकता है, right? Now here what you have to do is the plate tectonics के अंदर आसान तरीका से रिवाइज करने का ये एक मेथड है। लुक एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अंदर बोथ द प्लेट्स कम टुगेदर। नाउ दैट कैन बी ओशन कॉन्टिनेंट, ओशन ओशन एज वेल एज कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। इन दिस ड्यू प्रोसेस कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो which takes place? For example, if there is a sea floor, is it created or destroyed? Now convergent plate में destroyed होता है, create होता है, divergent plate में destroy होता है, create होता है। ये सारे चीज काफी वास्ट टॉपिक है। इस वास्ट टॉपिक को एक छोटा सा कंसोलिडेटेड एरिया में जब आप लेके आते हो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ दीज रिविजन कार्ड्स, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर दिस प्रीलिम्स। नाउ ये रिविजन कार्ड्स कहाँ पे मिल सकता है और ये रिवीजन कार्ड आपके पास है क्या? देखो बहुत सारे बच्चे के पास वन और द अदर फॉर्म में आपके पास होगा, बट लेकिन यू माइट नॉट आइडेंटिफाई दोज रिवीजन कार्ड्स इन योर ओन प्रिपरेशन। इसीलिए द आईएएस हब इज गिविंग यू दिस रिवीजन कार्ड्स, एंड along with that you will also get the further expected themes as well as the most repeated themes. आपको क्या करना चाहिए? You just need to go to the website and or you go to the Google and type high output themes. Now let me also show you one of the way जो नोट्स बच्चों के पास होता है उस नोट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसके साथ साथ रिवीजन कार्ड कैसे काम आएगा। देखिए आई टोल्ड यू दैट रिवर्स के ऊपर तो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, लेकिन पढ़ना कैसा है, पढ़ाना कैसा है, दिस इज समथिंग ए टीचर शुड नो, ए स्टूडेंट शुड ऑल्सो नो। नाउ हियर यू सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिवर गंगा, और इस गंगा रिवर में यू नो दैट it originates in the Himalayan regions and it drains into the Bay of Bengal. But origin से लेकर ड्रेन तक कौन सा ऐसा फिजियोग्राफिक रीजन से पास होता है, कौन सा ऐसा मेजर फिजियोग्राफिक रीजन है, कौन सा ऐसा लेक है और कौन सा ऐसा शहर है। अगर कोई नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क आपको जानना चाहिए। अगर कोई टूरिस्ट पिलग्रिमेज है साइट से, दैट साइट्स आल्सो यू शुड नो, बिकॉज यूपीएससी इज गोइंग इन द सिमिलर डायरेक्शन विच इज वी फॉलो हियर, राइट? So like that, you need to study the rivers topic in every dimension, not just knowing the tributaries, left bank, right bank tributary. वो जमाना गया, ठीक है? That was a long time period before जहां पे questions पूछा जाता था, लेकिन अब it is theme wise. It is all about analysis, understanding the previous year questions and then applying it in the present as well as applying from the current affairs. For that, this is how you are expected to do it. अगर वैसे ही मैं एक और टीम को डिस्कस करना चाहता हूं यहां पर, दैट इज यू सी एग्रीकल्चर। नाउ दिस इज द एरिया वेयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टिल डेट एवरी ईयर। नोइंगली और अननोइंगली यू विल बी गेटिंग टू नो दिस टुडे, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चरल गुड प्रैक्टिसेस है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन दैट, सच एज 1 माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो प्लान, कॉन्टूर बंडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है कुछ पूछा गया था, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में पूछा गया। बट लेकिन व्हेन यू गो एंड लुक इनटू द प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड थीम्स, देन हियर यू विल अंडरस्टैंड दैट एग्रीकल्चर में ना क्रॉप्स आर द एरियाज वेयर यू कैन लुक इनटू। इन दिस क्रॉप्स स्पेशली जीएम क्रॉप्स में बीटी ब्रिंजॉल, जीएम मस्टर्ड, this year they are in use for many reasons. Likewise, crop residue and XC2 management of crops residue. The questions can be asked on that. Bioethanol, इनके ऊपर भी questions हो सकता है. So ये जो प्रिपरेशन का तरीका एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए rather than just simply reading for 10 to 12 hours. इसीलिए मैं ये कहता हूं प्लीज स्टूडेंट्स पहले ये कंप्लीट करो, उसके बाद बाकी। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, दैट टू टीम वाइज एनालिसिस, रिवाइजिंग योरसेल्फ थ्रू द रिवीजन कार्ड्स, chances are very very highly likely that you will clear the prelims. फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होता है, राइट? इसीलिए
Please download them and you can start working upon them.